Hello friends, how are you? I am Satya. I am a 2019 batch IPS and today we are going to start a new series which is Environment and Biodiversity. So we all know that environment and biodiversity is a very important subject from the perspective of UPSC. प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बट इट बिकम्स मच मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स बिकॉज प्रीलिम्स में जो है वो एनवायरनमेंट के कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं और उसमें से भी जो है वो लाइक स्मॉल स्मॉल फैक्ट्स के बेसिस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं ओके सो वी हैव टू कवर the environment and biodiversity in depth. So the first topic we are going to study in this video is the tiger reserves in India. Okay, so there are total 50 tiger reserves in India spread across 18 states. Okay, so we will locate them on the map and we will look out for the important tiger reserves. Okay, so some basic facts before proceeding. So tiger, it is a cat species, we know that. So around 80% of the world's tiger population is in India. So this is a like great fact for us. Then we know that in 2006 the population of tiger dwindled to 1411. So 2006 में इसकी population मात्र 1400 के आसपास रह गई थी. But due to the conservation efforts of government of India as well as the other NGOs, environmental NGOs, the population has been almost doubled in 2018. So लगभग 12 साल में जो है वो लगभग डबल हो चुकी है population tiger की इंडिया में. So this is a very pleasant fact for us. उसके अलावा जो है यूपीएससी बहुत बार इस वाली चीज पे पूछ लेती है कि टाइगर जो है उसकी IUCN का स्टेटस क्या है. सो IUCN इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड इट रिलीजेस अ रेड डेटा बुक ओके एवरी ईयर और एवरी 2 years and it lists some of the species as endangered, critically endangered and vulnerable. So there are different categories based on their status. So tiger का जो status है that is endangered. Okay, so we must remember this because either UPSC will do that, they will give the name of 3-4 species and then they will ask which of them following is in critically endangered category and then they will give tiger as one of the option. So that will not be the true answer, or otherwise what will do, UPSC will ask a question about tiger and then they will write that it is a vulnerable species. So then again it becomes wrong, it is an endangered species. So just remember that. Then National Tiger Conservation Authority, it was constituted in 2005 because the population of tiger was falling rapidly. So the government of India constituted this body to protect the tigers and to conserve the tigers, okay, and the habitations of the tigers, and it administers the Project Tiger program of government of India. Okay, so we will now see what is the Project Tiger because UPSC has asked question based on this Project Tiger as well. So we will first cover some facts about it. So Project Tiger was launched in 1973 by government of India and it was launched under the Wildlife Protection Act 1972. Okay, so in 1973 India took initiatives to protect and conserve the tigers. So it is a centrally sponsored scheme. It provides central assistance to the tiger states. Okay, so there are a total 18 states जहाँ पर tiger की जो population है वो पाई जाती है and the government provides assistance in terms of financial and monetary terms for the tiger conservation in designated tiger reserves. Okay, so there are total 50 tiger reserves we will see and it aims at ensuring a viable population of Bengal tigers. So जो इंडिया में जो species है tigers की उसका नाम है Bengal tigers. Okay, so don't get confused, tiger and Bengal tiger they are both same in their natural habitat. This is one aim. The another aim is to protect them from their extinction, उनको खत्म होने से बचाना है. एंड थर्ड इज द प्रिजर्विंग एरियाज ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एज डाइवर्सिटी ऑफ इकोसिस्टम. तो जहां जहां जिन जिन एरियाज में टाइगर्स रहते हैं, जिन एरियाज में ये सर्वाइव करते हैं, उन इकोसिस्टम को भी बचाना जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर का एम है. ओके, and this National Tiger Conservation Authority, it was constituted in 2005 under this Wildlife Protection Act 1972. So okay, remember this fact that this is an statutory body. Okay, NTCA, it is statutory because it is constituted under one of the act passed by a parliament. So कोई भी body जो एक पार्लियामेंट द्वारा पास किया हुआ एक्ट है उसके तहत जब बनाई जाती है तो दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी बॉडी. ओके, सो दिस रिमेंबर दिस फैक्ट दैट NTCA इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इट एडमिनिस्टर्स द प्रोजेक्ट टाइगर प्रोग्राम. ओके, these are very important facts. Now we will locate all the 50 tiger reserves across India and the key to remember their names and key to remember that which tiger reserve is in which state.
is that we should proceed to the state wise. So otherwise जो 50 की लिस्ट है उसको याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. So the best method कि हम जो है स्टेट वाइज इनके नाम याद करते हैं और स्टेट वाइज जो है उनकी लोकेशन भी मैप में मार्क करने की कोशिश करते हैं. So we will follow this exercise and I recommend you people to practice this. Otherwise we will forget or otherwise we will get confused during the exam. So अगर हमने इस exercise को 2 या 3 बार कर लेंगे then it will really become easy for us. Okay, so the first one is the Bandhavgarh National Park. So Bandhavgarh National Park in Madhya Pradesh is near around this area. Okay, so just remember the eastern side of Madhya Pradesh and in center. Then Pench Tiger Reserve. Pench Tiger Reserve जो है महाराष्ट्र का जो बॉर्डर है लगभग यहाँ पे है. ओके, पेंच टाइगर रिजर्व. हमें थोड़ा सा बस ये लोकेशन पता होना चाहिए कि जो पूरा बड़ा स्टेट जो है उसमें लगभग उसकी कहाँ लोकेशन है. हमें एग्जैक्टली उसकी पिन पॉइंट करना जरूरी नहीं है, बिकॉज इवन जब ज्योग्राफी में भी मार्क करेंगे तो हमें लगभग स्टेट का पता होना चाहिए और कौन सी बाउंड्री के आसपास है या फिर उसकी एग्जैक्ट लोकेशन जरूरी नहीं भी होगी, तब भी हम जो सही आंसर निकाल लेंगे. देन पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो नदन मध्य प्रदेश में है और वो ऑलमोस्ट जो है इस वाले एरिया में. यहाँ पे पन्ना रिवर बहती है एंड पन्ना नेशनल पार्क है एंड पन्ना टाइगर रिजर्व. नेक्स्ट इज संजय धुबरी नेशनल पार्क. सो संजय धुबरी नेशनल पार्क को याद रखने का सिंपल सा तरीका है कि ये जो छत्तीसगढ़ में भी इसका कुछ एरिया है और मध्य प्रदेश में भी है. सो जो मध्य प्रदेश का ये वाला जो रीजन है जहाँ छत्तीसगढ़ से जो टॉप बॉर्डर बनाता है, यहाँ पे संजय धुबरी नेशनल पार्क है. देन सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो ऑब्वियसली सतपुड़ा रेंज में होगा और सतपुड़ा रेंज जो है वो एमपी के सदर्न साइड में है. ऊपर जो है वो विंध्या रेंज है, तो लगभग यहाँ जो है वो सतपुड़ा रेंज है और यहाँ पे जो है सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है. देन कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो जबलपुर के पास है. सो इट इज ऑलमोस्ट अराउंड हियर. ओके, so this is the exercise which we have to follow. Then we will move. So I forgot to tell just one fact. जो highest population है टाइगर्स की इंडिया में वो है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में जो अराउंड 500 से भी ज्यादा टाइगर्स हैं. ओके, सेकंड हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो है कर्नाटक में. ओके, एंड थर्ड हाईएस्ट जो है वो है उत्तराखंड में. सो वी शुड रिमेम्बर दिस. फोर्थ हाईएस्ट जो है वो है महाराष्ट्र में और फिफ्थ हाईएस्ट जो है वो है तमिलनाडु में. ओके, सो अगर हमें इतना भी पता होगा, सो अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है इसके आसपास की हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन कहाँ पे है या फिर इस तरह का अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वी विल बी एबल टू आंसर. सो हाईएस्ट इन मध्य प्रदेश, जस्ट रिमेंबर दैट. सेकंड हाईएस्ट इज इन कर्नाटका, थर्ड हाईएस्ट इज इन उत्तराखंड. तो अगर इतना भी याद रहेगा तो आई थिंक वी विल बी एबल टू सोल्व द क्वेश्चंस. सो अब हम मार्क करते हैं महाराष्ट्र के जो टाइगर रिजर्व है. मेलाघाट टाइगर रिजर्व जो है वो लगभग छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर है, सॉरी मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर है उसके आसपास है यहाँ पे. उसके बाद जो तड़ोबा अंधेरी है वो जो विदर्भ वाला रीजन है उसमें है, तो वी कैन मार्क इट अराउंड हियर. ओके, यहाँ पे जो है वो तड़ोबा अंधारी जो टाइगर रिजर्व है. नेक्स्ट इज सह्याद्री जो है वो सह्याद्री रेंज में है वेस्टर्न घाट्स में एंड वी कैन मार्क इट अराउंड हियर. ओके, सो लगभग जो साउथ वेस्टर्न महाराष्ट्र है उसमें. देन इज नवेगांव नागजीरा. सो ये जो है वो लगभग जो आपका तेलंगाना का जो बॉर्डर है उसके आसपास है, लगभग यहाँ पे. ओके, नवेगांव नागजीरा. देन फाइनली इट इज द बोर टाइगर रिजर्व. सो बोर जो है वो मध्य प्रदेश में यहाँ पे लगभग इसके आसपास पेंच टाइगर रिजर्व था, और जो महाराष्ट्र है उसमें यहाँ पे जो बोर टाइगर रिजर्व है. एंड देयर इज अ प्रपोजल कि आने वाले टाइम में जो ये पेंच और जो बोर टाइगर रिजर्व है इन दोनों को मिला के एक बड़ा टाइगर रिजर्व अक्रॉस द स्टेट्स बना दिया जाएगा. ओके, सो वी कैन इजीली रिमेंबर कि जो पेंच टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में और जो बोर टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में, दे आर एडजेसेंट टू ईच अदर. सो in future they will be merged. There is a proposal. जो second highest population है टाइगर्स की इंडिया में वो है कर्नाटक में. इन कर्नाटक में there are 5 different tiger reserves. So first one is the बंदीपुर. So जो बंदीपुर टाइगर रिजर्व है वो नीलगिरी की पहाड़ियों में है. सो बंदीपुर, नागरहोल और जो बेलीगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल यानी कि इसको बीआरटी टाइगर रिजर्व भी कहते हैं, ये जो तीनों है वो लगभग आसपास ही है. और जो ये यहाँ पे ये कर्नाटका है, इधर जो है तमिलनाडु है और जो इधर नीचे जो है ये केरल है. तो ये वाला जो रीजन है जहाँ पे नीलगिरी हिल्स है यहाँ पे ये तीनों हैं. अगर हम मार्क करते हैं तो लगभग यहाँ पे जो बंदीपुर टाइगर रिजर्व है इसके आसपास ही जो इधर वाला जो एरिया है वो नागरहोल टाइगर रिजर्व है और यहाँ पे जो है वो बीआरटी टाइगर रिजर्व है. ओके, नेक्स्ट इज द भद्रा टाइगर रिजर्व एंड दंडेली अस्सी, जिसको अभी जो है वो नया जो इसका नाम है वो काली टाइगर रिजर्व है. सो दंडेली अस्सी टाइगर रिजर्व इज ऑलमोस्ट अराउंड हियर. Okay, in Karnataka, not exactly here, it is very much more closer to the Goa. Okay, so it is around here, just pardon me for that. It is very close to Goa. And जो भद्रा टाइगर रिजर्व है वो ऑलमोस्ट लगभग यहाँ पे है सेंट्रल कर्नाटका में. ओके,
So these are the important 5 tiger reserves from Karnataka. So we have covered Madhya Pradesh, Maharashtra and Karnataka. Now we move towards Kerala and Tamil Nadu. So तमिलनाडु में जो है वो 4 टाइगर रिजर्व हैं, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड केरल में जो है वो 2 टाइगर रिजर्व है. सो पहले केरल के मार्क करते हैं. पराम्बिकुलम, जो यहाँ पे जो ये केरल का जो एक बॉर्डर बनता है, यहाँ पे इस वाले एरिया में जो है वो पराम्बिकुलम है, और यहाँ पे जो है वो पेरियार टाइगर रिजर्व है. So these are the important 2 tiger reserves which are very much closer to the Tamil Nadu border, okay, because यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स की जो डेंसिटी है और जो अगस्त्यमलाई हिल्स हैं या फिर जो अन्नामलाई हिल्स है, उसमें ये टाइगर रिजर्व्स हैं पाए जाते हैं. उसके बाद में हम तमिलनाडु के मार्क करते हैं. तो सबसे पहले हम मार्क करते हैं कलाकाड़ मुदनथुराई. ये जो है वो इंडिया का सदर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व है, और ये लगभग जो है वो यहाँ पे है. ओके, कलाकाड़ मुदनथुराई टाइगर रिजर्व. सो अगर यूपीएससी पूछ लेता है दैट द सदर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व, सो वी शुड रिमेंबर दैट इट इज कलाकाड़ मुदनथुराई. सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो है वो यूपीएससी ऑलरेडी पूछ लिया है, क्वेश्चन हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. ये जो है वो तमिलनाडु और जो कर्नाटक का जो बॉर्डर है वो लगभग यहाँ पे है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व. और इसकी खासियत ये है कि ये जो ईस्टर्न घाट और जो वेस्टर्न घाट है उसके बीच में एक जो लिंकिंग प्रोवाइड करवाता है. ओके, देन देर आर अन्नामलाई एंड मुडुमलाई. ओके, so they are almost near to the Karnataka border in the Nilgiri hills and Annamalai hills. Okay, so one is here, it is Mudumalai, and here it is Annamalai. Okay, so these are the important tiger reserves from तमिलनाडु रीजन. सो हमने देखा था कि कर्नाटका में जो है वो बंदीपुर लगभग यहाँ पे था, और नागरहोल जो है वो लगभग यहाँ पे था, और बीआरटी कॉरिडोर जो है वो लगभग यहाँ पे था. तो हम देख सकते हैं कि जो ये वाला जो वेस्टर्न घाट या जो नीलगिरी हिल्स और जो बाकी हिल्स का जो एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे टाइगर पॉपुलेशन पाई जाती है. सो यहाँ पे एक बड़ा फैक्ट भी पूछा जाता है दैट द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर is very high in the western ghats or the Nilgiri hills. So the answer will become correct. Okay, so we have to look for these small and important facts. इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से ही क्वेश्चन सही होगा. So this was the question which UPSC asked in 2017, and the question was, from ecological point of view, which one of the following assumes importance in being a good link between eastern ghat and western ghat. Okay, so जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से हम अभी देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है और किस तरह से हम आंसर पे पहुंचेंगे. सो वी नो दैट कि इस तरह से जो है वो वेस्टर्न घाट का एक्सपेंशन है, और कुछ इस तरह से जो है वो ईस्टर्न घाट का एक्सपेंशन है, और यहाँ पे जो है वो दोनों ज्वाइन करते हैं. ओके, ऑलमोस्ट, या जो है वो एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं. ओके, अब हम देखते हैं कि although we have not marked this नल्ला मल्ला एंड शेषाचलम बायो रिजर्व, अभी ये जो है हमने देखे नहीं है, बट आने वाली स्लाइड में हम देखेंगे ये जो दोनों है नल्ला मल्ला और जो शेषाचलम है, नल्ला मल्ला फॉरेस्ट दे आर फाउंड इन आंध्र प्रदेश. ओके, एंड शेषाचलम जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो भी आंध्र प्रदेश में है. सो आंध्र प्रदेश जो है एंटायरली ईस्टर्न घाट्स का है. ओके, आंध्र प्रदेश में जो ईस्टर्न घाट का एक्सपेंशन है. सो वी कैन एलिमिनेट दीज टू ऑप्शंस इफ वी नो दैट दिस नल्लामल्ला फॉरेस्ट एंड शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व दे आर इन आंध्र प्रदेश. ओके, and now we are left with two options, one is Nagarhole, another one is the Satyamangalam tiger reserve. So अभी हमने देखा था कि जब कर्नाटका में हम मार्क कर रहे थे, so नागरहोल टाइगर रिजर्व जो लगभग कर्नाटका में इधर की तरफ है थोड़ा. ओके, उसके बाद में बंदीपुर आता है, और यहाँ पे जो है लगभग सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है. सो द मोस्ट प्रोबेबल आंसर बिकम्स हियर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व. ओके, क्योंकि एग्जाम में हमें बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स कई बार नहीं पता होते हैं, सो हमें एलिमिनेशन मेथड से ही आंसर पे पहुंचना होता है. लेकिन हमने देखा था कि जो नागरहोल टाइगर रिजर्व है या जो नागरहोल नेशनल पार्क है वो एंटायरली कर्नाटका में था, और जो ईस्टर्न घाट और जो वेस्टर्न घाट जो ओवरलैप करते हैं वो लगभग जो केरल, तमिलनाडु और जो कर्नाटका का जो बॉर्डर है वहां पे करते हैं. ओके, एक तरफ केरल होता है, दूसरी तरफ तमिलनाडु, और तीसरी तरफ जो है वो कर्नाटका. सो सत्यमंगलम बिकम्स द आंसर. ओके, हम मार्क करते हैं कि जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के जो टाइगर रिजर्व्स हैं और छत्तीसगढ़ के जो टाइगर रिजर्व हैं. ओके, सो वी आर मूविंग इन अ फैशन. वी स्टार्टेड विद मध्य प्रदेश से स्टार्ट किया था, देन वी मार्क्ड महाराष्ट्र, then we reached to Karnataka, then Tamil Nadu, Kerala in the south, and now we have left with the two more southern states, they are Telangana and Andhra Pradesh. So this Kaval Tiger Reserve is in the northern Telangana. Okay, so Kaval Tiger Reserve वो लगभग यहाँ पे है. उसके बाद जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, ये जब यूनाइटेड आंध्रा था, यानी कि आंध्र प्रदेश का जो बाइफर्केशन हुआ, उसके पहले दिस वाज द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन द कंट्री इन एरिया पर्सपेक्टिव. ओके, जो एरिया के हिसाब से नागार्जुन सागर श्रीशैलम वाज द लार्जेस्ट. अब उसके बाद में जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जब डिवीजन हो चुका है, सो नागार्जुन सागर श्रीशैलम इज नाउ इन आंध्र प्रदेश, एंड अमराबाद जो है वो जो एरिया तेलंगाना में जो था उसका नाम जो है अमराबाद टाइगर रिजर्व दे दिया गया है. सो दिस एंटायर एरिया बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना,
ये नागार्जुन सागर श्रीशैलम है आंध्र प्रदेश में, और अमराबाद जो है वो तेलंगाना में। अभी भी इवन आफ्टर बाइफर्केशन नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है वो लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, और अमराबाद जो है वो सेकंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इवन आफ्टर द बाइफर्केशन, और इनको जो है दो अलग अलग हिस्सों में बांटने के बाद भी जो है वो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, इसको NSTR भी कहते हैं। सो दिस इज द स्टिल द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन द कंट्री। सो यूपीएससी या फिर बाकी एग्जाम से पूछ लिया जा सकता है कि जो सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। सो वी शुड रिमेंबर दिस नेम। ओके, नाउ वी मार्क द 3 important टाइगर रिजर्व्स इन छत्तीसगढ़। सो वन इज द अचानकमार टाइगर रिजर्व। सो अचानकमार एंड अमरकंटक ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है। तो जो अचानकमार है वो छत्तीसगढ़ की तरफ है, अमरकंटक जो है वो मध्य प्रदेश की तरफ है। सो जो ये वाला जो रीजन है यहाँ पे अचानकमार अमरकंटक की, इधर अमरकंटक की पहाड़ियां हैं और यहाँ पे जो है वो अचानकमार टाइगर रिजर्व है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट। अमरकंटक से जो है वो बहुत सारी नदियां निकलती है। आई कवर्ड दैट इन द रिवर्स ऑफ इंडिया सिस्टम। सो आई वांट यू पीपल टू राइट द रिवर्स विच आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अमरकंटक हिल्स। ओके, जो उनके नाम है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं, सो दैट इट विल शो दैट आपको कितना याद रह रहा है। ओके, सो अमरकंटक से निकलने वाली नदियों के नाम प्लीज राइट डाउन देम इन द कमेंट सेक्शन। दिस कैन बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी। नाउ नेक्स्ट इज द इंद्रावती एंड द इंद्रावती टाइगर रिजर्व जो है वो जो छत्तीसगढ़ का जो छत्तीसगढ़ जो महाराष्ट्र के साथ जो बॉर्डर शेयर करता है ऑलमोस्ट यहाँ इसके आसपास जो है वो इंद्रावती टाइगर रिजर्व है। ओके, और यहाँ के आसपास से जो वो इंद्रावती रिवर भी पास थ्रू करती है, और इंद्रावती जो है वो गोदावरी की इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। सो जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट्स, ऑल दिस फैक्ट्स आर इंटरलिंक्ड टू ईच अदर। ओके, देन लास्ट वन फ्रॉम द छत्तीसगढ़ इज द उदांती सीता नदी। सो उदांती सीता नदी जो है वो छत्तीसगढ़ और जो है उड़ीसा के बॉर्डर के आसपास है, लगभग यहाँ पे। ओके, सो आई थिंक नाउ यू विल बी इजीली एबल टू रिमेंबर दीज। उनको स्टेट वाइज याद रखना है तो ज्यादा इजी रहेगा, अगर सारे एक साथ याद रखने जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जस्ट रिमेंबर देम स्टेट वाइज, कौन से स्टेट में कितने टाइगर रिजर्व है। देन वी कम टू उड़ीसा। सो उड़ीसा में 2 टाइगर रिजर्व है, वन इज सिमलीपाल। सिमलीपाल जो है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल बॉर्डर के आसपास है, लगभग यहाँ पे। और जो सतकोसिया टाइगर रिजर्व है वो सतकोसिया रिवर जहाँ से फ्लो करती है ऑलमोस्ट सेंट्रल उड़ीसा के आसपास, लगभग यहाँ पे। ओके, सो दीज आर द 2 important टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल उड़ीसा एंड सतकोसिया टाइगर रिजर्व अगेन उड़ीसा। झारखंड जो है उसमें एक ही टाइगर रिजर्व है, उसका नाम जो है वो पलामू टाइगर रिजर्व है। सो जो झारखंड, ये वाला झारखंड है यहाँ पे मैप में, और जो झारखंड और बिहार जो बॉर्डर है उसमें लगभग यहाँ पे जो है वो पलामू टाइगर रिजर्व है। ओके, एंड वेस्ट बंगाल जो है उसमें 2 टाइगर रिजर्व है, वन इज सुंदरबन। तो वी ऑल नो दैट कि जो सुंदरबन है वो सुंदरबन का जो गंगा का डेल्टा है उसका नाम सुंदरबन है, और यहाँ पे जो है वो सुंदरबन टाइगर रिजर्व, और यहाँ पे जो है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन पाई जाती है टाइगर्स की। ओके, रॉयल बंगाल टाइगर्स। एंड जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वो ये वाला जो जिसको हम चिकन स्नेक भी कहते हैं, तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पे बक्सा टाइगर रिजर्व है। ओके, इन वेरी क्लोज प्रोक्सीमिटी टू द असम। ओके, सो यहाँ पे जो है वो बक्सा टाइगर रिजर्व है। सो आई थिंक यू विल बी एबल टू रिमेंबर। और यहाँ पे जो है सिर्फ 2 ही टाइगर की पॉपुलेशन है, यहाँ की जो पॉपुलेशन टाइगर है वो सिर्फ 2 टाइगर है यहाँ पे। नेक्स्ट इज बिहार। सो बिहार में भी जो है वो सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि, और वो जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ नेपाल के एडजेसेंट एरिया में है, तेराई रीजन में। ओके, उसके बाद जो यूपी है उसमें 2 टाइगर रिजर्व है। दुधवा टाइगर रिजर्व जो है वो ऑलमोस्ट नेपाल बॉर्डर के आसपास है यहाँ पे, और जो पीलीभीत है वो पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और वो जो है वो ऑलमोस्ट सेंट्रल यूपी में। ओके, सो आई थिंक दिस विल बी इजी टू रिमेंबर। यहाँ पे जो है दुधवा टाइगर रिजर्व है, और जो नेपाल है उसके जस्ट एडजेसेंट एरिया में दुधवा टाइगर रिजर्व है, एंड देन दिस पीलीभीत टाइगर रिजर्व। बिहार में जो है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। सो आई थिंक इन दिस फैशन यू कैन रिमेंबर देयर नेम्स। इन उत्तराखंड देर आर 2 टाइगर रिजर्व्स, वन इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, दैट इज द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सो जो उसका जो कॉर्बेट वाला हिस्सा है उसको कॉर्बेट टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है, एंड वो जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे है। ओके, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। एंड जो राजाजी टाइगर रिजर्व है, दिस इज द नदर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, वो लगभग यहाँ पे है। सो जो नदर्न मोस्ट है वो राजाजी टाइगर रिजर्व है, और जो सदर्न मोस्ट है वो है कलाकाड़ मुदनथुराई। ओके, सो यू पीपल शुड रिमेंबर देम। एंड नाउ वी मूव टुवर्ड्स राजस्थान। सो नॉर्थ में जो है वो एक स्टेट बच गया था राजस्थान, उसमें जो है वो 3 टाइगर रिजर्व्स हैं। सरिस का जो है वो अलवर डिस्ट्रिक्ट में है, और जो ऑलमोस्ट यहाँ पे है। ओके, सॉरी यहाँ पे अलवर डिस्ट्रिक्ट में, अलवर
में सरिस्का, एंड देन रणथंभौर जो है वो सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में है और उसकी जो लोकेशन है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे है, सवाई माधोपुर। देन मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो है वो मुकुंदरा हिल्स जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में ले करती है, और यहाँ इसके आसपास जो है मुकुंदरा हिल्स में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। ओके, यहाँ पे भी जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो काफी कम है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। सो जो नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेट्स हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, यहाँ पे जो है वो टाइगर रिजर्व है। बाकी स्टेट्स में टाइगर्स की पॉपुलेशन कम होती है या फिर नहीं होती है, इसलिए वहाँ पे कोई भी टाइगर रिजर्व नहीं है। सो सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्थ ईस्ट में वो है असम। सो असम में 4 टाइगर रिजर्व है, मानस, काजीरंगा, नामेरी एंड ओरांग। सो मानस टाइगर रिजर्व जो है वो भूटान का जो बॉर्डर है उसके आसपास है, और रॉयल भूटान जो है वहाँ पे भी रॉयल भूटान मानस जो फॉरेस्ट हैं वहाँ पे है, और जो असम में जो है मानस है। तो मानस जो है वो दोनों दोनों कंट्रीज में है, इंडिया में भी है और भूटान में भी है। भूटान में इसका नाम शायद रॉयल भूटान मानस नेशनल पार्क ऐसा कुछ करके है, और इंडिया में जो है मानस नेशनल पार्क एंड मानस टाइगर रिजर्व। सो वी कैन इजीली रिमेंबर जो भूटान से जो बाउंड्री पे है वो है मानस। फिर उसके बाद जो है काजीरंगा। सो काजीरंगा वी नो दैट कि जो ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे काजीरंगा है। ओके, एंड देन ऑलमोस्ट हियर देयर इज ओरांग टाइगर रिजर्व, और यहाँ पे जो है वो नामेरी टाइगर रिजर्व। ओके, so there is a proposal to move the excess population of one horned rhinoceros, जो जिसको गेंडा कहते हैं हिंदी में, वन हॉर्न राइनोसोर्स, उसको काजीरंगा से ओरांग की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाएगा, और कुछ जो वन हॉर्न राइनोसोर्स है उनको ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया गया है सक्सेसफुली। सो दिस इज एन अनदर इंपॉर्टेंट फैक्ट विच आई जस्ट टोल्ड, एंड अदरवाइज काजीरंगा और जो ओरांग है वहाँ पे भी टाइगर की पॉपुलेशन भी काफी ज्यादा है। नेक्स्ट इज अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व है, नामडापा, कैमलैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पखुई टाइगर रिजर्व, जिसका दूसरा नाम जो है वो पक्के टाइगर रिजर्व है। सो पक्के टाइगर रिजर्व इज ऑलमोस्ट अराउंड हियर in Arunachal Pradesh. Then your Kamlang Tiger Reserve or Kamlang Wildlife Sanctuary is here, and this Namdapa Tiger Reserve or Namdapa National Park or Wildlife Sanctuary is around here. Okay, so in this manner we can remember, यहाँ पे जो है वो पाखुई टाइगर रिजर्व है या पक्के टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे जो है वो कैमलैंग, एंड यहाँ पे जो है वो पाखुई टाइगर सॉरी नामडापा नेशनल पार्क। ओके, सो वी कैन रिमेंबर दिस। एंड नाउ द लास्ट वन और द 50th टाइगर रिजर्व इन इंडिया, दैट इज इन मिजोरम, और जो है उसका नाम है डम्फा टाइगर रिजर्व। सो जो त्रिपुरा और जो मिजोरम का जो बॉर्डर है ऑलमोस्ट इस वाले एरिया में जो है वो डम्फा टाइगर रिजर्व है। सो इन दिस मैनर वी हैव कवर्ड ऑल द 50 टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। एंड in UPSC 2018 they asked a very simple question: in which of the following states the Pakhui Wildlife Sanctuary is located? So Pakhui is name of the wildlife sanctuary as well as the tiger reserve, Pakke Tiger Reserve. Okay, so if you know just 2 facts, one that in northeast there are only 3 states जहाँ पे जो है वो टाइगर रिजर्व है, और अगर आपको पता हो कि जो पाखुई टाइगर रिजर्व है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। सो जो असम, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। ओके, सो अगर ये 3 पता हो कि जो असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम जो है यहाँ पे ही टाइगर की पॉपुलेशन पाई जाती है, सो यू कैन इजीली एलिमिनेट Meghalaya, you can eliminate Nagaland, and you can eliminate Manipur, and the only option which remains in front of you is the Arunachal Pradesh. So I hope that now you people are able to get the hint that how we can solve the prelims type of questions, अगर हमें पूरा completely idea नहीं भी है तब भी। Otherwise we have to remember that Pakke Tiger Reserve, और जिसका जो local नाम है वो पाखुई Wildlife Sanctuary, they are it is in Arunachal Pradesh. Okay, so I hope that you people have liked this video, और आप लोगों को जो क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया उसकी वजह से एलिमिनेशन मेथड भी कुछ समझ में आया होगा, और किस तरीके से हम जो फैक्ट्स वगैरह होते हैं एनवायरनमेंट में उनको याद कर सकते हैं। आई होप दैट दीज थिंग्स हैव बिकम bit clear to you. I'll try to explain more and more facts so that you can easily remember, and I will try to include more and more question from the UPSC previous year question paper, so that you just get the idea that what to read and what not to read. Okay, so I request you to please like this video, share it with your other friends, and subscribe to the channel if you have not done till now. Otherwise I hope that you have done it by now. So thank you, have a nice day.